यस फ्रेंड्स, तो मैं अभी ये क्वेश्चन नंबर द टॉपिक परसेंटेज ले रहा हूँ, ठीक है। इन परसेंटेज में परसेंटेज की सबसे पहले हम डेफिनेशन डिफाइन करेंगे और व्हाट इज द परसेंटेज मीन। सेकेंडली मैं बताऊंगा क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस हमने 13 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह से परसेंटेज का यूज करते हैं। सबसे पहले सॉरी, परसेंटेज मीन per 100, जैसे per 100, but percentage means it is taken from, ये इसको लिया गया कहाँ से, लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन भाषा से लिया गया। लैटिन में क्या है, इसका प्रॉपर वर्ड है परसेंटम। परसेंटम मीन्स बाय 100 और बाय द 100, राइट, बाय 100, राइट। और we can say by 100 means we have to find out that is the 100th part of anything or 100th part of something, right? By 100 means 100th part, 100th part of something, इसे कहते हैं by 100. So that means percentage. So percentage को मैं define करता हूँ, पहले definition देखिए। तो definition, sorry this is very dark one. Okay, so definition. Okay, percent मैं लिखता हूं डायरेक्टली। परसेंट मीन्स बाई 100, दैट मीन्स बाई 100 और 100th पार्ट ऑफ एनीथिंग और 100th पार्ट ऑफ ए नंबर, 100th part of a number or anything. In this case it is a number. Okay, so 100th part of a number, it has been taken or this word is, it has been taken from, the word has been taken, it has been taken from the Latin percentum. This is percentum, okay, Latin percentum, and percentum is percent. So this percentum, centum per means by 100, which means 100 by 100, which means by 100, which means by 100, or 100th part of anything, that I have already written. 100th part of anything, of any number, that means per 100. For example, let me write here 1% means, for instance, 1%. Now, what symbol for used? 1% means, let me write the first symbol also. Like 1% is equal to 0.01. 2% क्या मतलब हुआ इसका? ये हुआ 0.02. Let me take 80% divided by 100, that means 0.8 only. Okay, so this is 0.80 or 0.80. Similarly, let me take 71%. Any number we can say, put the decimal after two decimals. This is 0.71. 2 digits we have to put the decimal point from right inside. So after the 2 decimals. Okay, so this is how the 0.71% means this, etc. Now let me talk about symbol. The symbol used for percent. What is symbol then? This is the definition. And the symbol used for noting the percentage. That let me talk about. उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसका जो सिंबल है वो कहाँ से लिया गया है उसके बारे में बताते हैं। इसका जो सिंबल है वो लिया गया है the word
देखिए सिंबल, कौन सा सिंबल यूज करते हैं भाई, ये परसेंट इसका सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। द सिंबल यूज्ड is this, which is a distorted form of C. Okay, now either say C to centum, okay, or C oblique O, that means centum or centum, okay, for centum it may be CTO, that means centum of centum. This is of centum. The centum word is noted like this. So this symbol was initially used, this CTO or C oblique O, that was the initially used word for representing percent, okay, but now it has been converted as oblique, this 0 and 0, okay, upon a line. This is how percent symbol is taken. Is just distorted form of this CTO or C oblique O. Initially, this point was there. Okay, this is how the centum has been used. Now let us find what are the questions here. Question number 1. Symbol we have used, talked about, and then I have talked about that what is the origin of this word, from Latin it has been taken. इसके बारे में हमेशा ये लैटिन लैंग्वेज से दिया गया है। लैटिन वर्ड का परसेंटम जो वर्ड था उसका मतलब बाय 100 होता है, और 100 पार्ट ऑफ एनीथिंग, ओके, ऑफ ए नंबर, और एक फ्रैक्शन के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है बट हमेशा डिनोमिनेटर 100 होगा, दैट मीन्स 100 पार्ट ऑफ दैट नंबर। ऊपर वाले नंबर को हम रेट बोलते हैं, जो न्यूमरेटर में नंबर जो भी नोट किया जाता है, दैट नंबर इज नोन एज रेट, okay, at what percent rate, yes, or it is a fraction, I mean percent is a fraction, percent is a fraction, okay, in which numerator is any number, sorry, numerator in which, I'm sorry, numerator कोई भी नंबर हो सकता है, इज एनी नंबर, बट इट्स डिनोमिनेटर इज 100, इट्स डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100, इट्स डिनोमिनेटर इज 100, दिस इज परसेंटम, ओके, सो इट्स द फ्रैक्शन, some say that it is just like a fraction in which numerator can be any, और न्यूमरेटर को हमेशा रेट बोल देते हैं, इट्स न्यूमरेटर नंबर is known as rate. The numerator number is known as rate. Sometimes इसको हम रेट भी बोल देते हैं। इस रेट पर है भाई 10% रेट, 2% रेट, okay, 3% rate. So any numerical number on which is coming in the numerator, that is rate, that represents the rate, is also known as rate, okay, उसको हम रेट भी बोल देते हैं जी। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ आपका यहाँ तक, ओके। अब आप आते हैं चलिए साहब, ये हुआ आपका परसेंट के बारे में। नाउ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेट मी टेक द क्वेश्चन नाउ। अब हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 वो कहते हैं डिफाइन द परसेंटेज, और हमेशा क्या करते हैं परसेंट केस में हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंट को लिखना। जैसे 2%, दैट मीन्स 2 into 100, that means 200, 200 that number is percent represent, 2% represent 200. Okay. So that means if it is given that it is 2, we have to find out the percentage, we have to multiply that by 100 number. Now जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया डिफाइन परसेंटेज बैक, वो हमने डिफाइन किया अभी।
एंड व्हाट परसेंट इज इक्विवेलेंट टू 3/8%। देखिए क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है a fraction 3/8 to find, क्या फाइंड करना है भाई इसका हमें निकालना है परसेंट इक्वलेंट टू what percent is equivalent to 3/8, okay, 3/8. What percent is equivalent to 3/8? That we have to just find out. Let us now solve it. Solution देखिए. So let's say this is equal to x percent. Okay. Let x percent equal to 3/8. Therefore, x equal to 3/8 whole divided by percent sign. A percent sign means, let me write here, percent is equal to 1/100. Percent 1/100, 100th part of anything. So this symbol represents 1/100. Okay, so in place of that, here we have to write here, this is 3/8 whole divided by 1/100. That means you get 3 into, let me write 100, 3 into 100, sorry, 3 into 100 upon 8. Okay, 8 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में और ये 100 ऊपर पहुंच गया न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई हो गया 3 से, तो ये हो गया 300 upon 8, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो डिवाइड करते हैं, सॉरी, 8 3 जा 24, 6 बचता है 60 हो गया, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 4 बचता है 40 हुआ, 8 5 जा 40। अगेन देखिए 8 3 जा 24, 6 बचता है 60 हुआ, 8 7 जा 56, okay, 56 and 60 minus 56 is 4, so 40 point decimal area, 8 5 जा 40, so 37.5%. Okay, so this is x equal to, therefore 3/8 is equal to 37.5%. Okay, this is percent is equal to 3/8 equal to this much percent. That is what percent means 1/100. If I put here 37.5/100 करें तो हम सॉल्व करके देखेंगे 3/8 आ जाएगा, इसलिए ये आंसर हुआ 37.5 हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई 100 से करना होता है इस केस में, जैसे हमने किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट परसेंट इज इक्विवेलेंट टू 7/11 अगेन, और एक्सप्रेस 7/11 एज अ रेट परसेंट। सिंपल, व्हाट इज द रेट परसेंट ऑफ दिस अगेन, सो गिवन टू अस इन द सेम वे, given to us a fraction, we are given a fraction 7/11. Okay, to find here the percent equivalent to this, the percent equivalent to 7/11. Okay, solution. So 7/11, let us take, let x percent again equal to 7/11, or x into 1/100 is equal to 7/11. This implies that x equal to how much?
700 because 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 में ऊपर डिवाइड बाई 11 6 से 66 4 बचता है 40 11 3 या 33 7 बचता है 70 अगेन 11 सेम पॉइंट आएगा 0.63 like that. Okay, 0.63 it is repeated one 0.63 okay, because it is non-recurring decimal number, sorry, recurring decimal number. This is recurring but again repeated because 11 is there. Okay, non-terminating, this is sorry non-terminating decimal, non-terminating number है, decimal है क्योंकि ये terminate नहीं होता 60 से repeat होगा तो हमने बार लगा दिया तो इतने परसेंट आ गया. Therefore 7/11 is equal to 63.63% equivalent to this is the answer. Okay, so ये इसके इक्विवेलेंट है. कितने परसेंट के इक्विवेलेंट है, कितना रेट है भाई, ये है 63.63%. तो 63.63 रेट. Okay, so this is question number 2 वो complete. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को हमने करने के बाद लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखते हैं. लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3. चलिए सब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन 3 कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी हैज इंक्रीज फ्रॉम 80,000 to 85,000. फाइंड द इंक्रीज परसेंट. चलिए इसका लिख देते हैं. व्हाट इज गिवन टू अस, यहाँ गिवन है आपको द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी has increased from 80,000 to 85,000. Okay, to find what we have to find out the percent increase percent. Find the increase percent. To find the increase percent in or the percentage of increment in population. What population has increased? So the increase percent we have to find out the increase percent. That's the point. Solution. What we write the formula? We put the difference in the numerator divided by 100 or percent sign. Okay, or sorry, that we can divide by 100 and multiply by 100. That percent we can find out. What is the difference here? So divide by initial value. What is the initial population? 80,000. That we put in the denominator because at 80,000 which is initial population उस पर ही तो आपको increase निकालना है. तो difference दोनों का कितना latest वो है total population that minus previous पॉपुलेशन. तो डिफरेंस आ गया. डिफरेंस पॉजिटिव है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है. डिक्रीज होता तो वैल्यू नेगेटिव आती, यानी पहली वाली वैल्यू में से दूसरी वाली माइनस करती, जो लेटेस्ट है उसको माइनस करते हैं अगर डिक्रीज होता तो डिफरेंस ऊपर रख देते हैं डिवाइड बाई द इनिशियल वैल्यू ऑफ द इन दिस केस पॉपुलेशन है तो वो नीचे रखते हैं. तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है. टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज or the percentage increase in anything. किसी भी नंबर का किसी भी केस में हम अगर निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द इन दिस केस पॉपुलेशन, डिफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रखा, न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई initial population ये हमने यहाँ रख दी into 100 करेंगे. देखिए कितना डिफरेंस. तो ये हो गया 85,000 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई 80,000 into 100.
ठीक है जी। 85,000 माइनस 80,000 मीन्स 5,000 इन द न्यूमरेटर डिवाइड बाई 80,000 इन द डिनोमिनेटर। ये हो गया 80,000, 30 कैंसिल आउट हो गए, 100 से मल्टीप्लाई किया तो अभी भी 500/80 आया, एक जीरो कट गया तो 50/80 इतने परसेंट, परसेंट का साइन ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। ये आ गया 80 में 25/4, 25/4 2 से काट दिया आपने इसको, वैल्यू कितनी आती है 4 6 जा 24 एंड 1.4, ठीक है। 6 एंड 1.4 इसको हम 0.25 भी ले सकते हैं, 6.25%। ये आ गया आगे 6.25%। ये आंसर, इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में 6 एंड 0.25 बिकॉज 4 2 जा 8, 2 बचता है 20, 4 5 जा 20, तो 6.25% इंक्रीज हुआ, यही आंसर। तो पॉपुलेशन में कितना हुआ 6.25%। इस तरह से आप इनिशियल वैल्यू नीचे रख देते हैं, इनिशियल पॉपुलेशन जो भी थी उसको नीचे रखते हैं और ऊपर डिफरेंस रखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव डिफरेंस जो भी आता है वो ऊपर रखते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया। और आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि भाई वो क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट, देखिए क्या, इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स। ये देखिए, द कैंडिडेट हु गेट्स 41% is rejected by a majority of 2,412 votes. Find a total number of votes polled. Total number of votes polled निकालना है। अब देखिए गिवन पहले लिख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को, उसके बाद हम सॉल्व कर देते हैं। गिवन, we are given in an election, the defeated candidate gets or obtains 41% of votes, and loses by margin of 2,412 वोट्स। ठीक है जी, कितने वोट से हार जाता है भाई 2,412 वोट से हारता है। इसका मतलब विनिंग कैंडिडेट्स को इतने वोट ज्यादा मिल गए, लेकिन ये जो ज्यादा वोट्स मिले हैं विनिंग कैंडिडेट को, इसका मतलब 50% पे दोनों विनिंग नहीं होती, दोनों इक्वल होते, दोनों की विनिंग इक्वलेंट होती, लेकिन इसका मतलब उसको 50% ज्यादा मिले, इसको 50% से लेस कितना मिला 41%। इसका मतलब 50 में से 41 माइनस किया 9%, इसको डिफीटेड कैंडिडेट को कम वोट्स मिले। इसका मतलब 9% वोट्स एक्स्ट्रा उसको मिले, किसको मिले विनिंग कैंडिडेट। तो उसमें हमने 50 + 9 ऐड किया तो 59% वोट्स द विनिंग कैंडिडेट को मिले, 41% इसको मिले। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, परसेंटेज का डिफरेंस 50 - 41, तो 50 - 41 कोई 59 - 41 करेंगे तो 18 आ गया, 59 - 41 18%। इसका मतलब 18% का जो डिफरेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट 2,412 वोट्स। हम इसको इक्विवेलेंट करके टोटल वोट्स का 18% 2,412 वोट्स के बराबर है। इसका मतलब टोटल वोट्स कितने होंगे, टोटल वोट्स हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, टू फाइंड हियर, अच्छा ये हो गया टू फाइंड टोटल वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ओके। अब देखिए द विनिंग कैंडिडेट
gets 50 plus 50 minus 41% of votes. That means what? 50 plus 50 minus 41, 9 plus 50, 59%. 59% of votes ये विनिंग कैंडिडेट को मिल जाते हैं. सिंपल सी बात. सर 59% ऑफ वोट्स विनिंग कैंडिडेट को मिलते हैं, 41% इसको मिलते थे. सर 59% जो वोट्स हैं और ये 41% का वोट्स, therefore डिफरेंस in percent or in percentage of the two candidates is equal to 59 minus 41 is equal to 18%. इक्वल टू 18%. ठीक है जी. तो 18% का डिफरेंस हुआ, वोट्स का डिफरेंस ना 2412, उसको इक्वल कर देते हैं इसके. एंड दिस 18%, बट 18% of total votes is equal to 2412. ये गिवन है. क्योंकि विनिंग कैंडिडेट जिस पे 18% वोट्स का डिफरेंस ज्यादा मिलता है वो इन वोट्स की इक्विवेलेंट है. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स में निकालना है. 18% ऑफ टोटल वोट्स इक्वल टू दिस. देयरफॉर टोटल वोट्स इक्वल टू 2412 upon 18%. 18 into 1 upon 100. 18% मीन्स 18 upon 100. 100 ऊपर आएगा और डिवाइड कर देते हैं इसको. तो देखिए ये आ गया 2412 into 100 डिवाइडेड बाई 18. अब देखते हैं क्या ये 18 से या 9 से कटता है क्या. जैसे हमने आपको पहले ही बता रखा है कई बार कि जो भी नंबर होगा उस नंबर को 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो क्या करते हैं, सभी डिजिट्स का सम करके देखते हैं, ऐड करके देखते हैं. 2 + 4 6 + 1 7 + 2 9. 9 हो गया 9 तो 3 का मल्टीपल होता है. 3 से डिविजिबल है ये नंबर, 9 से भी डिविजिबल है. अगर मैक्सिमम नंबर 9 भी है तो 3 का मल्टीपल होता है 9. तो ये 9 से भी डिविजिबल है. 18 तो 9 से डिविजिबल होता ही, तो हम इसको 9 से काट सकते हैं. 9 से हमने 9 × 18, 9 × 2 = 18. 24 में से 18 गया 6 बचता है 61. देन 9 7 × 66 होता है. 9 6 × ओके 54. 9 6 से 54, 6 आ गया. 54 61 में से 54 गया तो 7 बचता है. राइट. 61 माइनस 54 7 एंड 2 72 हो गया. 9 8 × 72 पूरा 9 से कट जाता है. तो ये आ गया जी. 2 से वैसे कट रहा है अभी, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ 268 × 100 डिवाइड बाई 2. 2 से फिर कटता है. 2 × 1 and 2 × 1, 2 3 × 2 4 × 134 into 100. अब ये आ गया जी 13,400. 13,400. ठीक है. इतने वोट्स थे टोटल. देखो टोटल वोट्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वोट्स ओल्ड यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 13,400. ये आंसर है. ये हमने सॉल्यूशन निकाल दिया. देखा, इस तरह से आपने टोटल वोट्स का नंबर निकाला. ऑलराइट, 5वां क्वेश्चन करते हैं. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5. 5th क्वेश्चन क्या कहता है.